So welcome students. With continuing our chapter, life processes, now we are moving towards the second important process of human being, that is respiration. So what is respiration, how it happens, it happens in animals and plants. This is what we are going to read in this video. So let us start with the respiration. So what is respiration? I told you that in respiration, what food we have inside us. In the first part of life process, that is in the nutrition, we got glucose stored in our body. That glucose breaks down in the presence of oxygen. That's why we say biochemical breakdown of glucose is known as रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन की हेल्प से, जो आप ब्रीथ करते हैं, उसकी हेल्प से फूड को ब्रेक डाउन करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट. एंड आई टोल्ड यू, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कभी भी हम किसी भी कंपाउंड की अगर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं, यानी कि बर्निंग इन एयर हम बोलते हैं जैसे, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ऑलवेज हमारे पास दो ही प्रोडक्ट आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. और सिमिलर है कहाँ, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ये मेटाबॉलिक वाटर बॉडी के यूज में आ जाता है. गॉट इट? सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यूजुअली आस्क्ड बाय द बोर्ड and we have to study that difference also. There are two words, one is respiration and another is breathing. So what is breathing? So difference between respiration and breathing is that breathing is external process, external process, and respiration is internal process. Respiration is simply taken in of air and giving out air, that is taking in of oxygen and giving out carbon dioxide. So it is a process which is externally happening, but during respiration it is an internal process where the cell takes part in it, right? So respiration is an internal process where cell takes part in it, so it is intracellular, so internal process. During breathing, no energy is produced, and respiration, we told you that a lot of energy is produced. Usually, breathing happens without any enzyme, but respiration requires some enzymes also. So, for respiration, enzymes are also important. That's why we say that it is a physical process, that is just only taking in of air and giving out, and it is a biochemical process. So this is the basic difference between breathing and respiration. Respiration is of two types. We have read in the lower classes also that respiration is of two types, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration means in the presence of oxygen. If we are talking about aerobic respiration, that is aerobic, it means it is taking place in the presence of oxygen. But if we are talking about anaerobic respiration, then it is in the absence of oxygen. जब भी aerobic respiration होगा तो complete breakdown होगा ग्लूकोज का, और complete breakdown होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा. लेकिन जब anaerobic respiration होता है तब आपका complete breakdown नहीं है ग्लूकोज का, तब वो कन्वर्ट होता है वाटर और इथाइल एल्कोहल में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एल्कोहल में कन्वर्ट होता है. और ये जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये फर्मेंटेशन में काम आता है, विनेगर वगैरह बनाने में, ठीक है, जितनी आपकी बेवरेजेस हैं वो बनाने में काम आता है. तो वहां हम कौन सा कराते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारी बॉडी में कैसा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वहां हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. एक और है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स फर्स्ट. पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. Plants have a full body surface. Body surface I am saying
that is they can respire through their stem, they can respire through leaves, they can respire through their roots. रूट्स में भी डिफ्यूजन होता है गैसेस का, जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, वहां पर भी गैसेस डिफ्यूज करती हैं, ठीक है। जो लार्ज ट्रीज होते हैं या जो स्मॉल ट्रीज भी हैं वो स्टेम के थ्रू भी क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं स्टेम के थ्रू। हम एक वर्ड यूज करते हैं लेंटिकल्स, और लेंटिकल्स के थ्रू भी वो रेस्पायर करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं, जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। गॉट इट? हमने वो देख ही लिया था लास्ट में न्यूट्रिशन में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सॉरी कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, राइट। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में कैसे होता है? डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे अर्थवॉर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही क्या करते हैं, वो एयर को रेस्पायर करते हैं, राइट। फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स, जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जनरली गिल्स के थ्रू करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोचेस होते हैं, तो उनकी बॉडी पर होल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं स्पाइरेकल्स, वो स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग का कुछ कुछ स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन के जैसे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसलिए वो लंग से भी रेस्पायर करते हैं, वाटर के अंदर होते हैं तो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं, इसलिए उसके सारे वेज हैं, वो स्किन से भी कर सकता है और अपने लंग्स को भी यूज कर सकता है, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉग इज एन एम्फीबियन that lives on land also and that lives in water also। तो वाटर में होगा तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू कर लेगा, और लैंड पर है तो वो अपने लंग्स को यूज कर सकता है। सो डिफरेंट एनिमल्स के पास अपने डिफरेंट लंग्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिससे वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपकी बुक में गिवन भी है, इधर 102 और 101 पेज वो डायग्राम आपका गिवन है, तो आप उसको जरूर एक बार देखेंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट, जिससे आपको थोड़ा पता लगे, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। ये 3 पाथवे वाला जो क्वेश्चन है कि कैसे ग्लूकोज 3 पाथवे में जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली बोर्ड में पूछ लिया जाता है। व्हाट आर द 3 पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, राइट, कैसे कैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो सकता है। दैट इज, जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, आई टोल्ड यू कि लाइसिस वर्ड हमेशा जहां भी आएगा, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, लिपोलिसिस, तो ये वर्ड जहां भी आता है वहां मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी चीज का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज का है इसलिए वर्ड हो गया ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। हर चीज को ना आप एकदम ऐसे क्रैम मत करिए, आप उसका इंटर रिलेशन बना लीजिए। अच्छा, लाइसिस वर्ड ऑलवेज ब्रेक डाउन है, तो जहां भी लाइसिस होगा इट मीन्स ब्रेक डाउन होगा, ठीक। अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद पायरुविक एसिड जो बनता है, अब वो 3 वेज से ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, तो वो ब्रेक डाउन होगा कंप्लीटली ही आपका किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज भी होगी, ठीक है। दूसरा होगा अगर एब्सेंस है, अभी मैंने कहा एब्सेंस है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो यहाँ बना C2H5OH, जिसे हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल। आई टोल्ड यू कि आप साइड बाय साइड जरा नोट भी करते रहा करें ताकि आपके फुट नोट्स भी बनते जाएंगे, ठीक है। सो इथाइल एल्कोहल प्रोड्यूस होगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हम नहीं कह रहे हैं प्रेजेंस या एब्सेंस, हम कह रहे हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है लेकिन बहुत ज्यादा यूसेज हो गया है, तो वहां पर क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट थी लेकिन अब उसकी कमी हो रही है बस, ठीक है, जैसे ही मिलेगी फिर दोबारा से हो जाएगा उसके अंदर।
ठीक है, तो लैक ऑफ अगर ऑक्सीजन है तो प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, लैक से याद रखेंगे लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। और ये वाली जो रिएक्शन है जनरली जब होती है जब आपकी कोई मसल फटीग हो जाती है, यानी कि आप थक जाते हैं, आप रनिंग करके आइए तो थोड़ा सा आपके क्या होंगे, कार्ब्स के अंदर आपका दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो दर्द क्यों हुआ, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी नहीं, तो वहां क्या प्रोड्यूस हुआ, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूस होने से मसल्स क्रैम्प होना स्टार्ट हो गई। तो थोड़ी देर आप क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, रेस्ट करते फिर से क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जाती है, एक्सेस में आ जाती है, और ये लैक्टिक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाता है अपना ग्लूकोज में। अगेन आप रन करते हैं, फूड खाते हैं, फिर रन करते हैं, आप बहुत देर तक राइट कर रहे हैं, राइटिंग पार्ट कर रहे हैं, क्लास में होता है ना बहुत देर तक आप लिख रहे हैं, तो आपकी फिंगर्स क्या है, सोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने वर्क डिमांड बढ़ा दी, तो ऑक्सीजन आनी जरूरी थी, एनर्जी चाहिए थी फिंगर को, लेकिन हो नहीं पाया, तो यहाँ प्रोड्यूस हो गया लैक्टिक एसिड और आपकी फिंगर्स पेन करने लग गई। गॉट माई पॉइंट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो rest of the part of human respiratory system we will continue in the next video.